Hello students, welcome back to English Window with a new chapter, A Lecture Upon the Shadow. This chapter, actually this is a poem. This poem is a part of elective English of class 12th. So students, let's start this poem. Before starting this poem, I should tell you that this poem, A Lecture Upon the Shadow, has been written by John Donne. You can see here on my whiteboard that I have written the name of the poet, John Donne. तो मैं इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले इस पोएम के एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन समरी इन सारी चीज़ों को बताने से पहले आई शुड टेल यू अबाउट जॉन डन अ लिटिल बिट. तो जॉन डन वॉज अ पोएट, बट विच टाइप ऑफ पोएट? तो आई शुड टेल यू दैट जॉन डन वॉज अ मेटाफिजिकल पोएट. नाउ आप सोच रहे होंगे कि what is this word metaphysical? Some of you are aware of this word and some of you are not. So at first I should tell you what is this metaphysical. At first you can see here this word is compound of two words, meta and physical. So meta means beyond imaginary world. एंड फिजिकल सो जॉन डन एक ऐसे राइटर थे, एक ऐसे पोएट थे जो कि ऐसे राइटिंग्स करते थे, ऐसे कंपोजिशंस लिखते थे जो कि इमेजिनरी वर्ल्ड से बियॉन्ड होता था. सो इन दिस पोएम यू विल रीड दैट दिस पोएम इज अबाउट लव. एज वी टेक दिस वर्ड लव, we can imagine different types of love, but here especially this poem is based on a beloved and a lover's love. So we'll start it. This poem is a lovely poem. It is a lovely poem. जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह जो पोएम है वो लव पे बेस्ड है. आप देख सकते हो यहाँ पर एक वर्ड है शैडो. ऐसे तो शैडो का मीन्स क्या होता है? छाया. But here in this poem, the poet John Donne has used this word shadow for a different sense. This word shadow has been used here by the poet John Donne for misunderstandings. और वी कैन से जो हम किसी में कमियां होती हैं उन सब चीज़ों के लिए ये वर्ड शैडो यहाँ पर यूज़ किया गया है. दिस पोएम इज एक्चुअली depicts the reality of lover's life. It depicts the reality of lover's life. It means यह जो पोएम है वो lovers life के reality को शो करता है, उसके बारे में हमें बताता है. So I should recite the lines of this poem. Just be with me. Stand still, and I will read to thee a lecture, love, in lovers' philosophy. These 3 hours that we have spent walking here, 2 shadows went along with us, which we ourselves produced. But now the sun is just above our head. We do those shadows trade. And to brave clearness all things are reduced. So whilst our infant loves did grow. So students, in the first line we see the poet has written stand still. Stand still means what? Shant, calm. And I will read to thee. Here a word is thee. What does it mean? Thee. Now in English we use you, your. You, your. So in this sense, in ancient English, we can say in archaic English, thee, thy, thou was being used.
So here the poet is saying that stand still and I will read to thee a lecture love in love's philosophy. It means here the poet is saying about love. यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस पोएम में 3 स्टेजेस को डिनोट किया गया है. 3 स्टेजेस जो कि क्या क्या हैं? Stages of life. The first one is morning, the second one is noon, and the third one is afternoon, or we can say past noon. इन 3 स्टेजेस के जरिए जॉन डन ने यहाँ पर बताया है कि एक लवर्स और एक बिलवेड के लाइफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो कैसे ग्रो करती हैं, फिर वो एक एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुँच जाती हैं और वहाँ पर जो है वो शैडो बनता है. इट मीन्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होते हैं और देन द पोएट सेज दैट इट इज़ नॉट real life, it is not real thing because we have misunderstood so many things. This is not the real love of beloveds or lovers life. So we will see stanza wise. पोएट कहते हैं कि स्टैंड स्टिल, जब मैं तुम्हारे साथ यहाँ खड़ा रहूँगा, शांत रहूँगा, तो अ लेक्चर लव इन लव्स फिलोसॉफी, तो लव, जो लव है, जो प्यार है, उसकी फ़िलोसॉफ़ी के ऊपर हम लेक्चर देते हुए रहेंगे, हम उसे सुनेंगे. पोएट कहते हैं कि जब हम दोनों साथ निकलेंगे तो वो 3 आवर्स, बहुत लंबा टाइम हम साथ बिताएंगे, हम साथ चलते रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे और हमारी जो शैडोज़ है वो भी हमारे साथ चलेगी और लोग जो हैं वो हमारे शैडोज़ को देखकर हमारे लॉन्ग लाइफ, जो लॉन्ग लव लाइफ है उसका पता कर सकेंगे. उन्हें पता चलेगा कि यह जो लाइफ है, लवर्स का जो लाइफ है, वो बहुत लंबा चलने वाला है. जैसा कि हम जानते हैं कि मॉर्निंग टाइम जो होता है वो क्या होता है, मॉर्निंग में हमारा शैडो काफ़ी लंबा बनता है, काफ़ी बड़ा बनता है. तो यह जो शैडो है, ये जो हमारा जो वी कैन से प्रतिबिंब इन हिंदी, तो शैडो जो लंबा बनता है उसे यहाँ पर सिंबलाइज किया जा रहा है कि जो लव लाइफ है जब वो स्टार्ट होता है तो बिलवेड और लवर ये दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा जानना भी नहीं चाहते हैं. वो क्या करते हैं, बस दे वांट टू फील दैट फीलिंग, दैट लव, एंड दे वांट टू ग्रो एंड ग्रो. दे वांट टू कीप ग्रोइंग. सो हियर मॉर्निंग टाइम में उस लंबे शैडो की तरह लोग हमें देखकर ये अनुमान लगाएंगे कि इसका जो लाइफ है वो काफ़ी लंबा चलेगा. देन आफ्टर मॉर्निंग द स्टेज कम्स विच इज़ नून. तो दोपहर के समय हम जानते हैं कि शैडो, हमारा जो सन होता है वो कहाँ होता है, सीधे हमारे हेड के ऊपर, और उस वक्त हमारा जो शैडो होता है वो नहीं बनता, हम अपने शैडो को नहीं देख पाते हैं. तो पोएट आगे इस लाइन्स में कहते हैं कि वी डू दोज शैडो स्ट्रेट बट नाउ द सन इज़ जस्ट अबव आवर हेड. यानी कि सन जो है वो ठीक हमारे हेड के ऊपर है, जहाँ पे हमारा शैडो नहीं बनता है, हम नहीं देख पाते हैं. इट मीन्स हियर द पोएट वॉन्ट्स टू सिम्बलाइज दैट एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ, एट दिस स्टेज ऑफ लव लाइफ, जो लवर्स होते हैं, जो बिलवेड होते हैं, वो एक दूसरे की गलतियों को नहीं देख पाते हैं और वो बस इस फीलिंग के साथ आगे बढ़ते जाते हैं. And to brave clearness, all things are reduced. So whilst our infant loves did grow, disguises did and shadows flow from us and our course, but now it's not. That love has not attained the highest degree, which is still diligent, lest others see. It means, poet यहाँ कहते हैं कि and to brave clearness, all things are reduced. जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या जो भी बातें होती हैं वो रिड्यूस होती जाती हैं. यहाँ पर पोएट ने यूज़ किया है वर्ड इन्फेंट लव. इन्फेंट लव कहने का अर्थ है कि जब लव जो होता है वो अपने बिगनिंग स्टेज पर होता है, जो अपने इन्फेंट यानी कि शिशु अवस्था में होता है. तो वो कहते हैं कि जब हमारा जो इन्फेंट लव है वो ग्रो करेगा, बढ़ेगा, तो डिस्गाइजेस डिड एंड शैडोज़ फ्लो. तो वहाँ पर जो है एक दूसरे की कमी, एक दूसरे की बातें जो हैं वो एक दूसरे को दिखाई नहीं देंगी. जिस तरह से दोपहर के समय जो हमारा शैडो है वो हमें खुद को दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक उसी तरह से. फ्रॉम अस एंड आवर केयर्स बट नाउ इट इज़ नॉट दैट हैव
दैट लव हैज़ नॉट अटेंड द हाइएस्ट डिग्री। पोएट कहते हैं कि ये जो लव है उस समय तक अपने हाईएस्ट डिग्री यानी कि अपने एक्सट्रीम पॉइंट तक वो नहीं अटेंड किया होता है, नहीं पहुंचा होता है, विच इज स्टिल डिलिजेंट लेस्ट अदर्स सी। सो नाउ द पोएट इज सेइंग इन द नेक्स्ट स्टैंजा दैट एक्सेप्ट आवर लव्स एट दिस नून स्टे वी शैल न्यू शैडोज मेक द अदर एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड। इट मीन्स जैसे नून के बाद जो टाइम आएगा आफ्टरनून या फिर पास्ट नून जो हम कहते हैं, तो वहाँ पर जो है हमारा लव नून में यानी कि शैडो के जो हमारा नहीं बनता है उसके बाद फिर से वो बनना स्टार्ट होगा, और वहाँ पर वी शैल न्यू शैडोज़, हमारे पास नए शैडोज़ होंगे। यानी कि जब लवर या बिलवेड को लगेगा कि नहीं उन्होंने अपने इस लव लाइफ में सारी चीज़ें अचीव कर ली, गेन कर ली, तब फिर वो एक दूसरे की कमियां यानी कि शैडोज़ मीन्स जैसे कि मैंने आपको बताया मिसअंडरस्टैंडिंग्स, तो वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो उनके बीच में आएगी और एक दूसरे की कमियां वो गिनाना स्टार्ट करेंगे। उन्हें ये फील होगा दैट उसने मुझसे ये छिपाया, उसने मुझे ये नहीं बताया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड, फर्स्ट जब लव जो फर्स्ट स्टेज पे था उस समय क्या था कि वो ब्लाइंड हो गया था, यानी कि एक दूसरे की चीज़ों को, एक दूसरे की कमियों को, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को वो नहीं देख पाते थे। Others, those which come behind, will work upon ourselves and blind our eyes. If our loves faint and westwardly, it means here a word is westward. यहाँ पर पोएट जॉन डन ने दो सिंबलिक वर्ड यूज़ किया है, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ईस्ट एंड वेस्ट ये जो है वो इंग्लिश लिटरेचर के दो सिंबलिक वर्ड्स हैं, जो कि ईस्ट यानी कि वो ग्रोथ की ओर, डेवलपमेंट की ओर बताता है, और वेस्ट यानी कि जो डाउनफॉल की ओर दिखाता है, उसे सिंबलाइज करता है। तो पोएम ने काफ़ी सारे सिंबलिक वर्ड्स भी यूज़ किया इस पोएट में, इसे एक लवली पोएम बनाने के लिए। नाउ इन द नेक्स्ट, हियर द पोएट इज सेइंग इफ़ आवर लव्स फेंट एंड वेस्टवर्डली डिक्लाइन। इट मीन्स अगर हमारा जो लव है वो फेंट हो जाता है, वो वेस्टवर्ड जाता है, डाउनफॉल की तरफ जाता है, तो फिर वो क्या है, हमारे आइज़ को, हमारे थॉट्स को ब्लाइंड किया हुआ होता है। टू मी दाउ फॉल्सली दाइन एंड आई टू दी माइन एक्शंस शैल डिस्गाइज द मॉर्निंग शैडोज वेयर अवे बट दिस ग्रो लॉन्गर ऑल द डे बट ओ लव स्टे शॉर्ट इफ लव डिके लव इज अ ग्रोइंग और फुल कॉन्स्टेंट लाइट एंड his short minute afternoon is night. The poet is saying here, poet कहते हैं कि लव क्या होता है, जो रियल लव होता है वो नून की तरह होता है, यानी कि दोपहर की तरह होता है, जहाँ पे एक दूसरे को, लवर और बिलवेड दोनों को एक दूसरे की कमियाँ, एक दूसरे का इग्नोरेंस, एक दूसरे की मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। बट here poet is saying that love is light as it is sign of clarity. लव क्या है, ये क्या है, क्लैरिटी का साइन है, यानी कि इसमें क्या होते हैं, एक दूसरे के लिए क्लैरिटी होनी चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बट हियर द पोएट इज सेइंग दैट ये जो वेस्टवर्ड डिक्लाइन की बात उन्होंने किया है, इट मीन्स इट इज़ द डिक्लाइन ऑफ लव बिकॉज ऑफ कन्फ्यूज़न, बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन द लवर एंड द बिलवेड। पोएट कहते हैं कि हर एक स्टेज के बाद दूसरा स्टेज आता है। इट मीन्स एक छोटे से टाइम के बाद, जैसे कि मॉर्निंग के बाद नून आता है, नून के बाद फिर नाइट आता है, ठीक उसी तरह से इस लव रिलेशन में क्या होता है, पहले मॉर्निंग होता है, फिर नून हो जाता है, फिर आफ्टरनून हो जाता है, या फिर कह सकते हैं नाइट हो जाता है। इट मीन्स द स्टेज ऑफ लव लाइफ इज़ बीइंग चेंज्ड, वो चेंज होता रहता है। एंड लास्टली द पोएट सेज कि यह जो है, पोएट का ये कहना है कि जो लाइफ होती है, लव लाइफ होती है, वो क्या होती है, एक स्टेज ऑफ लाइफ है, जिसे उन्होंने मॉर्निंग, नून और पास्ट नून की तरह सिंबलाइज किया है। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू गिव यू सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि पोएट ने एज अ सिम्बॉलिक यूज़ किया है। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर आई हैव मेंशन्ड सम पॉइंट्स ऑन दिस वाइट बोर्ड। द फर्स्ट इज shadows are the symbol of love and this is at morning stage. At noon stage, the stage when there will be no shadow, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया कि दोपहर के टाइम में कोई शैडो नहीं बनता है, ठीक उसी तरह से उस टाइम में लवर्स और बिलवेड को एक दूसरे की मिस्टेक्स, एक दूसरे की बातें नहीं दिखाई देती हैं, वो ब्लाइंड हो जाते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज आफ्टरनून। एट दिस स्टेज
दिस इज़ द स्टेज व्हेन लव इज़ एट इट्स हाई स्पीड. जब लव जो होता है वो अपनी हाई स्पीड में होता है, एक्सट्रीम पॉइंट पर होता है. सो दिस आर 3 सिम्बॉलिक थिंग्स. एंड नाउ द स्टूडेंट्स, आई शुड टेल यू दैट आपको ये याद रखना है कि शैडो जो है, शैडो का मीनिंग यहाँ पर क्या हो रहा है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इग्नोरेंस and such type of things. Here shadow means not chaya. So this is really a lovely poem, and now I hope you will be able to write the answers of the questions of this poem. And I think I should tell you one thing, that जॉन डन जो है, जॉन डन ने इस पोएम को उन्होंने अपने फर्स्ट एनिवर्सरी में अपनी वाइफ के साथ लिखा था, ऐसा कहा जाता है. सो जॉन डन इज़ रियली अ मेटाफिजिकल पोएट. इस पोएम को पढ़ने के बाद आपको ये पता चल गया होगा, समझ आ गया होगा. देर आर सो मेनी अदर पोएम्स ऑफ जॉन डन जिसमें कि आप ऐसी चीज़ें, ऐसे थीम्स आपको मिलेंगे, एंड यू विल एन्जॉय द पोएम. सो बी विथ मी फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़, फॉर द नेक्स्ट चैप्टर्स. टिल देन, हैव अ नाइस डे. Goodbye.